Hello, good morning everyone. So we have completed almost three chapters of our fluid mechanics. Today we'll start with the new chapter, that is your buoyancy and flotation. Uh, I think you have studied buoyancy and flotation in your 12th also, or in your physics in your first year also. So in this chapter, basically we are studying about the equilibrium of floating and submerged body. Okay, so there are many factors or the many points which we need to take into consideration while buoyancy and flotation. First point is your buoyancy. Okay, the different parameters which we are going to study is: first is your buoyancy, second is your center of buoyancy, third is your metacenter. What do you mean by metacenter? Metacentric height, an analytical method of determination of metacentric height, condition of equilibrium of floating and submerged body, experimental method of metacentric height. Okay, so we'll start with the first part, that is your buoyancy. Okay, so basically buoyancy, what does it mean is that by definition buoyancy is what, when a body is immersed in a fluid, an upward force is exerted by the fluid on the body. Okay, this upward force is equal to the weight of the fluid displaced by the body and is called as the force of the buoyancy or simple buoyancy force. So in this, what you can say that, suppose this is a liquid, and if you submerge any body which is having certain mass into this fluid, what will happen? An upward force will be created on this body by the water. That force is nothing but your buoyancy force. Okay, and this force is generally equal to what? It is equal to the weight of the fluid displaced by the body. Okay, so whatever amount of water has been displaced by this body, that will be equal to this force. Okay, so the force is equal to the weight of the water which has been displaced by this body. Okay, so buoyancy is very simple. If you insert up any body inside water and upward in water or any other liquid, and what will happen, an upward force will be exerted by the fluid on that particular body, and that upward force is nothing but your buoyant force or simply buoyancy. Okay, now the next part of this is your center of buoyancy. Okay, now this force, because some force will be acting on this body, so this force will act at a certain point on the body, and that particular point is nothing but your center of buoyancy. Okay, what is center of buoyancy? It is defined as the point through which the force of buoyancy is supposed to act. As I have told you that if this force is acting on the body, it will act at a certain point, so that point is nothing but your center of buoyancy. Okay, as the force of the buoyancy is in the vertical force, it is equal to the weight of the fluid displaced by the body. The center of buoyancy will be the center of gravity of the fluid displaced. Okay, so what it is saying is that as the force is in vertical force, as you can see that this force is the vertical force. Okay, and what will be, it is generally equal to the weight of the fluid displaced. As I have told you, this force will be equal to what? This force will be equal to the weight of the water which has been displaced by this element. Okay, okay, after that part, after that, what it is saying that, so the center of buoyancy will be the center of gravity of the fluid displaced. So if whatever amount, suppose if we consider that this is the total body, suppose this much amount of water has been displaced by this force, by the weight of this body. Okay, so this, the center of gravity of this point, what it is saying that the center of buoyancy will be the center of gravity of the fluid displaced. So the center of buoyancy will be what? It will be the center of this point. ठीक है, जितनी भी आपका जो भी, देखो बेसिकली क्या बोल रहा है कि अगर आपका कोई बॉडी को अपन इमर्स कर रहे हैं वाटर में, व्हाट विल हैपन, उसमें क्या होने वाला है, एक अपवर्ड फोर्स क्रिएट होने वाला है. ठीक है, अब वो अपवर्ड फोर्स किससे इक्वल होने वाला है? जितना बॉडी को आप इमर्स करोगे, कुछ वाटर आपका क्या होगा, उस जगह से डिस्प्लेस हो जाएगा. तो जितना वाटर डिस्प्लेस हो रहा है, ठीक है, उसी से आपका ये जो फोर्स है उतना इक्वल होने वाला है. ठीक है, दिस फोर्स विल बी इक्वल टू द वाटर, वेट ऑफ द वाटर विच इज बीन डिस्प्लेस. ओके, सो जो सेंटर ऑफ बॉयंसी रहेगा वो कितना रहेगा, जितना वाटर डिस्प्लेस हुआ. सपोज दिस मच अमाउंट अपना वाटर डिस्प्लेस हुआ, तो इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है दैट विल बी इक्वल टू द सेंटर ऑफ बॉयंसी. दैट विल बी इक्वल टू व्हाट? द सेंटर ऑफ बॉयंसी. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये वाला जो पार्ट है, this part is mostly used in your numerical. Okay, so this is very important, center of buoyancy. और ये वाला जो टर्म है कि जितना बॉडी डिस्प्लेस हो रहा है, ठीक है, जितना वाटर डिस्प्लेस हो रहा है, ठीक है,
उससे आपका क्या रहने वाला है, उसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी रहेंगी दैट विल बी इक्वल टू द सेंटर ऑफ buoyancy. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. Okay, after that we'll start with the first numerical. Okay, directly it is giving the numerical related to your what, related to your buoyancy force. So we'll start with the first numerical. The first problem is that find the volume of water displaced. Okay, we need to find out the volume of water. क्या निकालना है अपने को, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस निकालना है. ओके, द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ बॉयंसी, सेंटर ऑफ बॉयंसी का पोजीशन फाइंड आउट करना है फॉर द वुडन ब्लॉक of width 2.5 meter. So the width of this wooden block is 2.5 meter and the depth is what, 1.5 meter. Okay, when it floats horizontally in water, the density of wooden block is what, 650 kg per meter cube and its length is 6 meter. ठीक है, तो अपने को क्या क्या चीज़ें निकालना है, अपने को निकालना है वॉल्यूम बेसिकली. ठीक है, वी नीड टू कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ वाटर, कि अगर ये बॉडी को आप वाटर में इमर्स करते हो तो कितना वाटर डिस्प्लेस हो रहा है. ठीक है, that volume we need to find it out. After that we need to find out the position of center of buoyancy. तो अगर ये बॉडी आप क्या कर रहे हो, वाटर में इमर्स कर रहे हो, ठीक है, तो क्या होने वाला है इस वाटर पे, इस बॉडी में buoyancy फोर्स कहाँ पे एक्ट करने वाली है, दैट हाइट वी नीड टू कैलकुलेट. ओके, तो अपने पास गिवन पैरामीटर्स में क्या दिया हुआ है, वी हैव अ वुडन ब्लॉक, ओके, which is having a width of 2.5 meter. We have the dimension of wooden block. Okay, the depth is what, 1.5 meter. Okay, and its length. So if in this it is a 2D diagram, so in this 3D part it will show its length. Okay, so the length of this wooden block is of 6 meter. So we'll start with the solution. Okay, so first we'll write all the given parameters. We have the width of the wooden block, that is 2.5 meter. We have got the depth of the wooden block, that is 1.5 meter. We have got the length, that is 6 meter. Okay, so if we have got all the 3 dimension of the wooden block, we can easily calculate its volume. Okay, so the volume of a rectangular shape object is what, width into depth into what, length. So 2.5 into 1.5 into 6, that will give you the volume. 22.50 meter cube is the volume. Okay, that is the volume of this wooden block. After that we have been provided with the density of the wood. Okay, so the density of wood is what, 650 kg per meter cube. So the density is what, 650 kg per meter cube. From this we can calculate the weight of the block. So the weight of the block is given by what, rho g into volume. अब the question arises, ये फॉर्मूला आ कहाँ से रहा है, वेट का फॉर्मूला क्या है अपने पास, we have got weight formula, that is specific weight, weight upon volume. ठीक है, अब वेट को अपन क्या लिख सकते हैं, मास into what, gravitational force into what, volume. ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं. ओके, नाउ अपने पास क्या फार्मूला हो गया, मास इंटू वॉल्यूम क्या हो गया आपका, मास इंटू वॉल्यूम हो गया आपका रो जी. ठीक है, तो वेट का फार्मूला क्या हो गया, वेट इज नथिंग बट योर रो इंटू जी. अब देखो आपका जो वेट है इसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं, मास इंटू वॉल्यूम. इंटू रो इंटू जी. ओके, तो अगर अपने को मास निकालना है, ओके, सो अपने पास फॉर्मूला क्या है मास के लिए, मास का अपने पास फॉर्मूला ये गलत हो गया. मास का जो फॉर्मूला है वो क्या आपके पास, वेट इंटू वॉल्यूम. ओके, सो वी कैन डायरेक्टली रिप्लेस दिस वेट बाय व्हाट, बाय रो जी. सो मास के लिए अपने पास फॉर्मूला क्या बन जा रहा है, रो जी वी. So in this way we can calculate the weight of the block. So weight of the block is what, rho g into volume. Okay, so after putting all the values in this we can get the weight. Okay, the weight is coming out to be 143,471 Newton. ये कैसा आ रहा है, डेंसिटी ऑफ वुडन ब्लॉक अपने पास गिवन है 650 का, जी अपना आ रहा है 9.81. वी हैव आल्सो गॉट व्हाट, वी हैव आल्सो गॉट द वॉल्यूम ऑफ द वुडन ब्लॉक. सो द वॉल्यूम ऑफ वुडन ब्लॉक इज 22.5. दैट विल गिव यू द टोटल वेट, दैट इज इन टर्म्स ऑफ न्यूटन. ओके, अब नेक्स्ट पार्ट क्या बोल रहा है, फॉर इक्विलिब्रियम.
व्हाट इज इक्विलिब्रियम? इक्विलिब्रियम में क्या बताने वाला था कि जितना वेट ऑफ वुडन ब्लॉक है दैट विल बी द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर विच विल बी डिस्प्लेस। सो जितना आपका वुडन ब्लॉक का वेट आने वाला है दैट इज द अमाउंट ऑफ वाटर, उतना ही वेट ऑफ वाटर क्या होगा आपका डिस्प्लेस होगा। तो वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस किससे इक्वल हो गया? वेट ऑफ वुडन ब्लॉक विच इज इक्वल टू व्हाट? 143,471। अब वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस, अब ये अपने को निकालना है वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस। तो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस, वी हैव गॉट द वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस। कितना वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस था? इतना वैल्यू आ रहा है अपने पास। एंड वी हैव गॉट द वेट ऑफ डेंसिटी ऑफ वाटर। तो इन दोनों को अगर अपन डिवाइड करेंगे तो अपने को क्या मिल जाएगा? वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस। ओके, सो वेट डेंसिटी देखो यहाँ पे अपने पास क्या हो गया? वेट ऑफ वाटर कितना आ रहा था? 143,471। दिस इज द अमाउंट ऑफ वाटर विच इज बीन डिस्प्लेस एंड वेट डेंसिटी ऑफ वाटर इज व्हाट? 1000 इंटू व्हाट? 9.81। ओके, सो द वेट डेंसिटी ऑफ वाटर इज गिवन एज 1000 इंटू 9.81। तो यहाँ से अपने पास जो वॉल्यूम निकल के आ रहा है वो कितना आ रहा है? 14.625। दिस मच वॉल्यूम ऑफ वाटर विल बी डिस्प्लेस। ओके, सो इतना वॉल्यूम अपने पास आ रहा है जितना वाटर अपना डिस्प्लेस होने वाला है। ठीक है, नाउ द इम्पॉर्टेंट पार्ट इज योर पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ बॉयंसी। अब पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ बॉयंसी में अपन ने क्या बोले थे? जितना वाटर डिस्प्लेस होगा, ठीक है, सपोज इतना अमाउंट जो डिस्प्लेस हुआ, इसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी रहेंगी वो किससे इक्वल रहेंगी? वो इक्वल रहने वाली है अपने पास किससे? दैट विल बी इक्वल टू द वेट ऑफ व्हाट? दैट विल बी इक्वल टू द सेंटर ऑफ बॉयंसी। ठीक है, इसका जो सी जी रहने वाला है, जितना वाटर डिस्प्लेस हुआ उतना ही अपना क्या रहने वाला है? सेंटर ऑफ बॉयंसी रहने वाला है। तो उसके लिए अपने को क्या निकालना पड़ेगा? ये हाइट निकालना पड़ेगा कि कितना हाइट ऑफ वाटर डिस्प्लेस हुआ। ठीक है, तो अपन निकालते हैं कैसे? देखो, ये अपना डायग्राम दिख रहा है, यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर आपको ब्लॉक दिख रहा है, इसको वाटर में इमर्स किया गया है। ठीक है, ये 1.5 मीटर की हाइट है। देखो, टोटली सबमर्ज नहीं है, कुछ हाइट तक सबमर्ज है, तो उस हाइट को अपन क्या बोल रहे हैं? एच। बिकॉज जितना हाइट आपका सबमर्ज है उतना ही क्या होने वाला है? वाटर डिस्प्लेस होगा, और इतना ही अपने को क्या मिलने वाला है? इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी रहेगा, ये एच का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी रहेगा वो किससे इक्वल होने वाला है? दैट विल बी इक्वल टू द सेंटर ऑफ बॉयंसी। तो अगर अपन ये एच निकाल लें तो अपन सेंटर ऑफ बॉयंसी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए अपन क्या कर रहे हैं? देखो, वॉल्यूम ऑफ वुडन ब्लॉक इन वाटर इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस। जितना वॉल्यूम ऑफ वुडन ब्लॉक रहेगा वाटर में जितना है, उतना ही क्या होने वाला है? वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस होने वाला है। ठीक है, टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर, आपके टोटल वॉल्यूम ऑफ वुडन ब्लॉक्स नहीं लेने पड़ेगा, जितना वॉल्यूम कितना है सबमर्ज है वाटर में उतना ही वॉल्यूम रहेगा, और वो किससे इक्वल होने वाला? उतना ही वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या होगा? बाहर आएगा या फिर डिस्प्लेस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है? वॉल्यूम ऑफ वुडन ब्लॉक इन वाटर इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस। अब अपन देख लेते हैं कि कौन से पार्ट आ रहा है वॉल्यूम में। देखो, 2.5 मीटर इतना वेट तो अपने को कंसिडर करना ही है, 6 मीटर की उसकी लेंथ है वो भी अपने को कंसिडर करना है, इसका जो डेप्थ है वो अपने को नहीं पता, तो दैट विल बी रिटन एज एच। तो इसको अपन क्या लिख रहे हैं? एज एच। ठीक है, नाउ वी हैव गॉट द वैल्यू ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस। अपने पास वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस की वैल्यू है अपने पास 14.625 मीटर क्यूब। ठीक है, तो यहाँ से अपन क्लियरली एच कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एच कैलकुलेट करने के लिए अपने को क्या लग रहा है? 14.625 divided by what? 2.5 into 6, that will be giving you the value of 0.975। तो ये इतना हाइट है अपने पास, यहाँ से यहाँ तक का जो हाइट है वो कितना आ रहा है? 0.975। अब अपने को निकालना था सेंटर ऑफ बॉयंसी। तो सेंटर ऑफ बॉयंसी मैंने क्या बताया था? जितना आपका वुडन ब्लॉक इमर्स रहेगा और या फिर जितना वाटर आपका डिस्प्लेस होगा, तो इतना वाटर ही डिस्प्लेस होगा एच हाइट तक का, उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी रहेगा वही इक्वल रहेगा आपका सेंटर ऑफ बॉयंसी से। तो अगर अपन एच का, इस हाइट का अपन क्या करेंगे? सेंटर निकाल लें। ठीक है, तो ये जो हाइट रहेंगी दैट विल बी नथिंग बट योर सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ दैट पर्टिकुलर बॉडी विच इज बिन द वाटर विच इज बिन डिस्प्लेस्ड, एंड दैट इज ऑल्सो इक्वल टू द सेंटर ऑफ बॉयंसी। सो कितना आ रहा था अपने पास? 0.975। तो 0.975 टोटल हाइट है, उसका ग्रेविटी निकालने के लिए, सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? इन केस ऑफ रेक्टेंगल हाफ करना पड़ेगा, तो दैट इज इक्वल टू व्हाट? 0.875। तो यही इक्वल होने वाला है किससे? आपका सेंटर ऑफ बॉयंसी से। ओके, आफ्टर दैट वी विल सी द नेक्स्ट न्यूमेरिकल। ये वाला न्यूमेरिकल कई बार पूछता है पेपर में। ठीक है,
नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज व्हाट, फाइंड द डेंसिटी ऑफ योर मेटालिक बॉडी। एक मेटालिक बॉडी है, उसकी अपने को डेंसिटी निकालना है, विच फ्लोट्स ऑन द इंटरफेस ऑफ मर्क्यूरी ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 13.6, okay, and water, such that 40% of volume is submerged in mercury and 60% in water. So basically what is happening, a body has been immersed in a fluid which consists of basically two liquids. One part of it is a water and one part of it is mercury, and it is saying that 40% of that metallic body is been immersed in what? 40% is immersed in water, okay. 40% volume is been immersed in water and 60% of it is, and 60% is in mercury, okay. 60% of it is in mercury. Let me see, let me check. It's a specific gravity 13.6, interface of specific 13, and water such that 40% of its volume is submerged, sorry, 40% is submerged in mercury and 60% in water, okay. So basically what is happening, a metallic body has been taken which has been immersed in a fluid which basically consists of two fluid, one is your water, one is your mercury. So it is partially immersed in what, it's 40% of the body is been immersed in what, it is in mercury, and 60% of it is in water, okay. Now we need to find out the density, okay. Density निकालना है अपने को, तो density कैसे निकालेंगे? So first we will consider that the total volume of the body is equals to what, V meter cube, okay. We don't know the value of, because there is no such value given for the body, so we will consider that the volume of the body is what, V meter cube, okay. After that what we will do, now we have got that then the volume of body submerged in mercury, okay. So from here we can calculate the percentage, because the body which has been submerged in mercury, we have got that it is 40% to 40 by 100, that will give you 0.4 V meter cube. Similarly we have got the percentage of water which has been submerged in what, water, so 60 by 100, that will be giving you 0.6 V meter cube. Now the equilibrium condition, what does equilibrium condition says, that the total buoyant force is equal to the weight of the body. Now in this case what is happening, that the total body has been immersed. पिछले वाले प्रॉब्लम में क्या हो रहा था, पूरा बॉडी इमर्ज नहीं था, अब ये वाले केस में क्या हो रहा है, पूरा टोटल बॉडी इमर्ज हो रहा है वाटर में। सो तो जितनी भी बॉयंट फोर्स रहेंगी वो किससे इक्वल होने वाली है, वेट ऑफ द बॉडी से इक्वल होने वाली है, ठीक है। अब बॉयंट फोर्स जो आएंगी वो क्या होने वाली है, अब देखो सिंस इट इज हैविंग टू लिक्विड, यहाँ पे दो अलग अलग लिक्विड है, तो क्या होने वाला है, फोर्स ऑफ बॉयंसी ड्यू टू वाटर, बॉयंसी ऑफ वाटर के लिए एक अलग फोर्स आएंगी, और बॉयंसी ड्यू टू मर्क्यूरी के लिए आपका क्या रहेंगे, अलग रहेगा। तो वेट ऑफ बॉडी क्या हो गया, दोनों फोर्स का समेशन, फोर्स ऑफ बॉयंसी ड्यू टू वाटर एंड फोर्स ऑफ बॉयंसी ड्यू टू मर्क्यूरी, ओके। आफ्टर दैट फोर्स ऑफ बॉयंसी ड्यू टू वाटर में क्या कंसिडर करना, अपन अब टर्न बाय टर्न देख लेते हैं। फोर्स ऑफ बॉयंसी ड्यू टू वाटर पहले कंसिडर करते हैं, तो अपने पास क्या दिया हुआ है, वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस बाय द बॉडी। सो वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस बाय द बॉडी कैसे निकालेंगे अपन, अभी अपन ने प्रीवियसली देखे कैसा निकलता है फॉर्मूला अपने पास, रो इंटू जी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी ऑफ वाटर, अगर वाटर के लिए कंसिडर कर रहे हो तो जी इंटू वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस। अब यहाँ पे अपने पास क्या क्या पैरामीटर्स गिवन है, देखो डेंसिटी ऑफ वाटर वी नो दैट इट इज 1000, वी नो दैट जी इज 9.81, बट द वॉल्यूम ऑफ बॉडी इन वाटर वी डोंट नो दैट, वी हैव द वैल्यू दैट इट इज कमिंग आउट टू बी 0.6 V। सो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, कितना बॉडी इमर्स था वाटर में 0.6 V, तो वी हैव रिटन दैट ओनली। So force of buoyancy due to mercury, again the same formula, density into what, G into what, volume of water displaced by mercury. So G into what, 13.6 into 1000 into a volume of body, we know that it is 0.4, this is your second equation. अब ये जो दोनों भी है वो किससे इक्वल होने वाला है, ये दोनों भी इक्वल होने वाली है आपका टोटल वेट, टोटल buoyant force और द वेट ऑफ द बॉडी, बिकॉज इस केस में क्या है, टोटली बॉडी इमर्स है, ये भी किससे इक्वल होगा आपका, रो जी इंटू वी, ठीक है। तो ये दोनों इक्वेशन को अपन क्या करेंगे, यहाँ फर्स्ट इक्वेशन लिखेंगे प्लस सेकंड इक्वेशन यहाँ लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि आप आपके पास टर्म आ रहा है, रो जी वी आपका ये साइड में लिखा हुआ है, पहली इक्वेशन 1000 जी इंटू वी 0.6 V, नेक्स्ट इक्वेशन 13.6 इंटू 1000 इंटू जी इंटू 0.4।
अब ये 13.6 कहाँ से आ रहा है? एज यू नो दैट स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मर्क्यूरी इज गिवन एज 13.6 मल्टीप्लाई बाय 1000, दैट विल गिव यू द डेंसिटी ऑफ व्हाट? मर्क्यूरी. ओके. आफ्टर दैट ये दोनों इक्वेशन को इक्वेट करने के बाद में क्या हो रहा है आपके पास? बी वाले जो टर्म्स है दोनों तरफ आ रहे हैं तो दैट विल गेट कैंसल. ओके. जी सारे तरफ में आ रहा है, जी भी क्या होने वाला है? कैंसल. बच क्या आ रहा है अपने पास? अननोन, दैट इज ओनली योर डेंसिटी. बाकी सारे पैरामीटर्स को लेफ्ट साइड पर रखो तो आपके पास बच क्या रहा है? 600 प्लस 13600 इंटू 0.4. वहाँ से आपका जो वैल्यू आ रहा है वो कितना आ रहा है? 6040 kg per मीटर क्यूब. सो दिस इज द डेंसिटी ऑफ बॉडी. ठीक है. दिस इज एन इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल. This has been asked in your university exam. Okay. So this much for today. After that, we'll start with your meta center. What do you mean by meta center and what is the meta centering height? There is a derivation over meta centering height, and there are also numericals related to meta centering height that we will discuss in the next class. Okay. This is for today. Okay.